Hello everyone, I am Dhairya M. Thakkar, welcoming you all for the new episode of WOW series, Words of Wisdom. Just imagine you are at a place where you get an opportunity to learn, to get an opportunity to network, and you get an opportunity to grow, and also get an opportunity to learn from chartered accountants across the industry. Now stop imagining because you are at the right place. We at the Winner's Circle, a student led initiative, is here for you. We have also started with our first project, that is an anthology named Education. So, in case you are unaware of it, do check it out. The links have been attached in the description. And now, let us address Man of the Hour, CACS Vijay Sarda sir, our today's TWC ambassador. CA Vijay Sarda sir has not just been a mentor, not just been a teacher, but has also been our own guiding light for years. A teacher for more than a decade and currently working at Ekatvam for more than a couple of years, Sir has truly been our holding hand in our journey of becoming a chartered accountant. With more than 3 lakh YouTube subscribers, 90,000 Insta followers, and 10,000 LinkedIn followers, you have truly been an inspiration for us. So, in simple, if I have to put it this way, in विजय सर्स वे, मौसम आएंगे मौसम जाएंगे बट सीए तो हम बन के दिखाएंगे. एंड टू एड ऑन टू इट, अगर लिए हैं विजय सर के लेक्चर्स तो टैक्स में तो अब हम एग्जेम्पशन लाएंगे. So we are highly grateful for CA Vijay Sarda sir for your humble presence and we look forward to you for the interview. Thank you so much. Thank you so much there. So yeah, so sir the very first question is कि आप जलगांव में परस्यू कर रहे थे आपकी स्टडीज कॉलेज एंड देन सीए. सो एंड नाउ यू आर अ टीचर एंड अ स्टूडेंट मेंटर हु इज नोन अक्रॉस द कंट्री. So, do you ever feel that you are living your dream life? Yeah, are there any dreams which you still feel are yet which are to be fulfilled? Well, आप अगर मेरे से पूछेंगे तो यस, ये बहुत ही इमोशनल, फुलफिलिंग और इंस्पायरिंग जर्नी रही है मेरे लिए भी, मेरी फैमिली के लिए भी, एंड द पीपल अराउंड मी. ऑब्वियसली मैं ये कह सकता हूँ कि यस, आई एम लिविंग माई ड्रीम. आई ऑलवेज वांटेड टू बी हियर. आई ऑलवेज वांटेड टू डू दिस. And I always wanted to, motivate all those students, everyone who comes from a very humble background like me, to aspire something which he always dreamed. मतलब जो उसने हमेशा से देखा है, बहुत ही जीरो से चालू करके वो 100 तक का जो सपना होता है ना, उसे देखने का जर्नी बहुत अलग है. स्टार्टिंग फ्रॉम वन स्टूडेंट, देन कमिंग टू वन डिस्ट्रिक्ट, देन स्टेट. आज पूरा भारत एक क्लासरूम जैसा लगता है, क्लासरूम सा फील होता है, क्योंकि ऑलमोस्ट हर जगह से बच्चा कनेक्टेड है. रीसेंट पास्ट के अंदर में हम लोगों ने कुछ बच्चे दुबई और नेपाल से कैटर करना शुरू किए हैं, बिकॉज वो सेम इंस्टीट्यूट के अटेम्प्ट देते हैं, सेम इंस्टीट्यूट के अंदर से कवर होते हैं. बट हाँ, मुझे एक चीज समझ में आती है कि एक टाइम तक के लगता था ये पर्टिकुलर ड्रीम है. आप लाइफ में और पैशन को जब फॉलो करते हो ना, तो आपको लगता है कि यार हर दिन एक नया ड्रीम है, आज फुलफिल करो, कल एक नया जन्म लेगा. यस, तो यस, एक बात अगर मैं आपसे कहूं कि हाँ, अगर मैं अपनी लाइफ को जी रहा हूं, मैं अपने ड्रीम को जी रहा हूं, हाँ ये बिल्कुल सही है. मैं अपने लाइफ को भी जी रहा हूं और अपने ड्रीम को भी जी रहा हूं. और एवरीडे कुछ नया ड्रीम बनाते हैं, क्योंकि इस कोर्स ने इतना कुछ दिया है कि जितने थे वो पहले ही फुलफिल हो गए. अब तो कुछ नया बनाना पड़ता है ताकि उसको फुलफिल कर सके. Great, sir. Truly a great share. So, now when you are teaching at Ekatvam Academy and you have been a teacher for like more than a decade as we discussed. So, how this equation has now changed for you to being an individual teacher and teaching when you yourself were a CA student to now heading such a big group of teachers and thousands of students you cater? वेल, अगर मैं इसे दो पार्ट में डिवाइड कर सकूं तो ये ज्यादा बेटर होगा. सबसे पहले, बीइंग अर्लियर एज अ स्टूडेंट एंड नाउ बीइंग अ स्टूडेंट के अंदर में क्या डिफरेंस है. देखो, पहले का जो स्टूडेंट होता था ना, वो क्यूरियस था. व्हाट आई मीन टू से इज, मतलब वो खुद थोड़ा सा रिसर्च करता था, वो खुद थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करता था, क्योंकि हम जिस टाइम पे ये कर रहे थे तब तक के क्लासेस एंड ऑल इतनी सारी चीजें नहीं होती थी, है ना. बहुत फ्यू सब्जेक्ट्स की क्लासेस होती थी और कुछ लेवल्स पे ही क्लासेस होती थी. तो वो होता था ना
तो उसको कुछ क्वेरीज भी आती थी तो वो पूछता नहीं था, वो क्वेरीज को होल्ड करता था, वो खुद थोड़ा सा रिसर्च करने की बात करता था, वो खुद थोड़े से एफर्ट्स डालने की बात करता था। आज एज अ स्टूडेंट ये थोड़ा सा अलग है। सी, आज के जो बहुत सारे स्टूडेंट है ना, उनको वो एफर्ट्स लेने नहीं है, और सूनर एक आधी अटेम्प्ट लगाने के बाद समझ में आता है कि इस कोर्स के अंदर में ना इतने आसानी से ये नहीं होने वाला। ऑनेस्टली 12th तक के उनका स्कूलिंग से इतना बेटर हो जाता है कि उनको फाउंडेशन क्रैक करने में इतना डिफिकल्टी नहीं आता। बट बेसिकली जब वो इंटर एंड फाइनल के अंदर में आते हैं, तब उनको समझ में आता है यार बहुत बड़ा डिफरेंस है। और ये जो गैप है ना इंटर से फाइनल का, मैं आपको बताता हूं, आप में से बहुत लोग जो फाइनल के अंदर में वो शायद ये एनकाउंटर कर रहे होंगे कि उनको लिखते नहीं आता है। ये एकदम रियलिटी है। क्यों? क्योंकि उनका माइंड और उनके हाथ बिल्कुल अलग अलग काम कर चुके हैं। इंटर तक के समहाउ उसको लिखने का प्रैक्टिस डेवलप होता है, आर्टिकलशिप में आता है एवरीथिंग ऑन द सिस्टम, लिखने का आदत खत्म हो जाता है। ये 2 साल 3 साल का जो गैप है, जब ये फाइनल तक के पहुंचता है, वो इतना बड़ा हो जाता है कि ही नोज इसका आंसर क्या है, ही वॉन्ट टू राइट इसका आंसर क्या है, बट उसको लिखने बोल देना ही डोंट नो व्हाट टू राइट। और इस कारण से आप देखेंगे कि बहुत सारे रिजल्ट जो है ना वो इधर उधर हो जाते हैं। ये हुआ पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि हाँ, एज फार एज इतने बड़े इंस्टीट्यूट को हम लोग किस तरीके से अब रन कर रहे हैं, वी आर टेकथॉम, हमने जब सारे के सारे पार्टनर्स जो थे इन लोगों ने मिला, हम लोगों ने एक बेसिक चीजों पे वर्क किया। मतलब आज काफी प्राउड होता है ये कहते हुए कि हर वो बच्चा जो पुणे में आता है, शायद एडवर्टीजमेंट वो किसी का भी देख करके आ रहा हो, क्लास तो हमारे पास ही आ जाता है ना। बिकॉज हर सीए बच्चे को ना सूनर और लेटर ये समझ में आ जाता है कि बड़े बड़े पोस्टर और बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट से वो काम नहीं होता, जो एक्चुअल राइटिंग प्रैक्टिस से होता है ना। नाम आपने भी सुने होंगे, एडवर्टीजमेंट्स आपने भी सुने होंगे, बट राइटिंग प्रैक्टिस जो काम करती है ना वो कोई नहीं करता। एंड दैट इज द रीजन शायद फाउंडेशन में एट टाइम फेस टू फेस में हम लोग मोर देन 1000 स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं। फेस टू फेस पुणे की बात कर रहा हूं मैं। इंटर के अंदर में अभी जो ग्रुप 2 का बैच चालू है, मोर देन 1300 स्टूडेंट्स फेस टू फेस हमारे साथ बैठे हैं। और फाइनल के अंदर में फेस टू फेस का वो बिकॉज ऑफ द आर्टिकलशिप नहीं होता, बट एवरी बैच वो रॉयल्टी रिपीट होती है, स्टूडेंट्स रिपीट होते हैं। अब क्या अलग कर रहे हैं, वो बहुत सिंपल सा पॉइंट है। हमको ना एक बात समझ में आ गया कि आप कितना भी शोबाजी करो, रिजल्ट इससे नहीं आएगा। रिजल्ट एक ही चीज से आएगा, एंड दैट इज राइटिंग राइटिंग राइटिंग। द मोर यू राइट द मोर यू गेट एक्चुअली प्रोविजन। आप सभी एक बात से अग्री करेंगे कि कुछ प्रोविजंस आपको समझ ही तब आते हैं जब आप एक्चुअली उसको सॉल्व करते हो। अच्छा ये ऐसा था, ये वैसा नहीं था। एंड दिस इज द ओनली गेम। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, यू नो, इट इज द प्रैक्टिस विच विल गिव यू दिस थिंग। तो आज हम लोग बस यही एक एफर्ट ले रहे हैं। हमारे पास जितने भी लोग हैं, चाहे वो थ्योरी ही सब्जेक्ट क्यों ना पढ़ा रहे हो, वो मेन फोकस ये करेंगे कि राइट राइट। मतलब आप किसी के भी बारे में बात कर दो, चाहे वो दर्शन सर हो, चाहे वो ऋषभ सर हो, चाहे वो एडीजेड सर हो, मनीष सर हो, तो वो जो प्रैक्टिस वाला चीज है, ये हम बस ज्यादा फोकस करते हैं। और बच्चे आज जितने भी आते हैं, जैसे वो होते हैं ना, कई कई 12th पास होके नए नए निब्बा निब्बी आते हैं, है ना, जिनको लगता है कि यार उन्होंने लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लिया, और फाउंडेशन भी क्लियर हो जाता है, तो उनको लगता है कि भाई तेरा अब गाड़ी चलाएगा वाला फील। उनको इंटर में आकर के ना जब प्रॉब्लम सॉल्व करने को बोलते हैं ना, तब उनको क्लिक हो जाता है कि ये वो जगह नहीं है जो मैं सोच के आया था। यहाँ लिखना ही पड़ेगा, सॉल्व करना ही पड़ेगा, तो वो रिजल्ट आएगा। इसीलिए अगर आप देखेंगे ना, हमारा सबसे ज्यादा फोकस बोथ ग्रुप पास के ऊपर होता है कि यार तू पास कर लेगा, ये चीज तेरे को करनी है। सो दैट इज हाउ थिंग्स आर मूविंग। क्योंकि हमने भी वही चीज देखा बीइंग एन एवरेज स्टूडेंट। क्योंकि देखो यार, एक बात समझ लेना, शायद हम वो हाईलाइट ना करें, क्योंकि रैंक 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 जो होता है हम शायद वो हाईलाइट नहीं करते। रीजन बड़ा सिंपल है, क्योंकि एक चीज हम बहुत कोर से समझते हैं एट एकथोम, आप अगर 200 पे भी पास हुए हो तो आपकी इज्जत उतनी ही है जितनी शायद किसी ने टॉप ला करके किया होगा। और अगर मैं बात करूं, रैंक 50 ही आएंगे यार, 50,000 बच्चा एग्जाम दे रहा, सिर्फ 50 रैंक आएंगे, तो क्या वो इज्जतदार नहीं है जिसको रैंक नहीं आया? द आंसर इज नो। उसके भी साइन का वैल्यू उतना ही है, आपके भी साइन का उतना वैल्यू है। हाँ, ये बात बिल्कुल एक्सेप्टेबल है, जिसने रैंक लाया उसने डेफिनेटली बहुत बड़े एफर्ट्स लिए हैं। स्टूडेंट ने वो एफर्ट्स लिए हैं, टीचर ने वो एफर्ट्स नहीं लिए। मैं ये बहुत कोर से जानता हूं। तो बस इसी फंडामेंटल के साथ हम यहाँ पे थोड़ा सा वर्क करते हैं कि यार आप प्रैक्टिस करो, बोथ ग्रुप पास का विजन हम देते हैं कि यार तू पास कर। और रैंक आता है बहुत अच्छी बात है, पर रैंक के साथ अगर तेरे को वो स्किल सेट नहीं आता तो मजा नहीं आएगा। तो इसी के लिए आप देखेंगे
जितने भी टीचर्स है वो सारे के सारे क्लास के कॉन्सेप्ट के अलावा दूसरी भी बातें कर रहे हैं। जैसे अभिषेक सर होंगे तो वो एफएम वगैरह की बहुत सारी बातें करते हैं, जहाँ पे स्टॉक मार्केट, बिटकॉइंस। मैं थोड़ा काला सफेद अलग अलग कलर दिखाता हूँ लाइफ के अंदर में, है ना। तो ये सारी चीजें बहुत है, बस यही थोड़ा सा ग्रोथ दे रहा है बच्चों का, बाकी प्यार है और कुछ नहीं। So very true. राइटिंग प्रैक्टिस इम्पोर्टेंट है, वो हम लोग को अटेम्प्ट का ठोकर खा के ही पता चला। सी राइटिंग पार्ट है या नहीं, तू बता मेरे को, एकदम फैक्ट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। वेरी ट्रू। मतलब सी मैं आपको एक बात बताऊं, अभी फाइनल का लेक्चर चालू है हमारा, बच्चा लिटरली उसको ये 2 मिनट के लिए वापस सोचने लग जाता है, पहले सरचार्ज ऐड करना है या बाद में एचईसी ऐड करना है, पहले कौन सी एक्टिविटी करना है। क्योंकि प्रॉब्लम पता है क्या है, उसने प्रैक्टिकल में कुछ और देख लिया कि ऊपर इनकम डाले तो नीचे टैक्स आ जाता है इन द सॉफ्टवेयर। तो वो जब एक्चुअली एक एक स्टेप सॉल्व करने जाता है तब उसको गड़बड़ लगती है। तो आंसर उसको पता है। अभी जैसे सबसे दर्द दिया सब्जेक्ट क्या है, ऑडिट और डीटी। ऑडिट को अगर आप देखोगे ना, आपको शायद क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ जाएगा इसका आंसर कंक्लूजन क्या होना चाहिए। आपको क्लिक है, लिखना क्या है मेरे भाई, वेन यू डोंट नो इट ना, यहां वो प्रॉब्लम है और इसको ब्रिज करना बहुत जरूरी है। तो वो एग्जाम में होता है कि आपने वो देखा हो, आपको याद है ये देखा, लेकिन करते कैसे हो किया नहीं, बिकॉज आपने खुद प्रैक्टिस नहीं दिया उसको। करेक्ट करेक्ट। प्लस सर इसमें ना एक ऐसा भी होता है कि आपको कंक्लूजन पता है कि क्या होने वाला है, बट बीच की कड़ियां गायब है, हाँ वो क्लिक नहीं होता कि किस प्रोविजन के हिसाब से कंक्लूजन आए। सी इसी के लिए वो अगर आप करते हैं ना तो आपका काम हो जाएगा बस। और हम बस वही ट्राई कर रहे हैं यार बेसिकली। So my one question would be कि you have said a lot of times कि you are a workaholic and we have seen you, but throughout like life, how has your priorities changed? Like, पहले क्या थी and अब इस point पर आके आपकी priority क्या है? विथ रिस्पेक्ट टू वर्क और विथ रिस्पेक्ट टू Both एनीथिंग। like how you manage your life in your life throughout कि आपका भी पहले like was seeing। हाँ ये एकदम बिल्कुल सही है। और मैं एक और बात बहुत अच्छे से कहता हूँ, बी अ सीए, डेट अ सीए एंड हैव अ चार्टर्ड लाइफ। तो मेरी जो वाइफ है वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है और ये लव मैरिज था, तो शी हैव सीन कि मैं वर्कहॉलिक हूँ और ये जर्नी किस तरीके की जर्नी होती है, राइट। सो सी जब आपको किसी काम के लिए पैशन होता है ना, आप ऑटोमेटिक उसके अंदर में इन्वॉल्व होते जाते हो। आप बिल्कुल इंश्योर करते हो कि जो फैमिली टाइम आपको निकलना चाहिए वो निकले। तो आई मेक श्योर कि महीने के कुछ चीजें जो हैं या साल की कुछ चीजें जो हैं इस टाइम पे मैं फुल्ली ऑक्यूपाइड रहूं, और कुछ टाइम जो है ये अपने फैमिलीज के लिए जरूर निकालते रहूं। बट इन द मीन टाइम जब आपको एक लत लग जाती है ना किसी चीज की कि यार काम में पैशन है, तो चाहे वो टीचिंग हो, चाहे फिर वो हमारे बिजनेसेस हो, चाहे फिर वो हमारा कोई भी चीज हो, वो उसके अंदर में मजा आने लगता है। बट वेन आई एम एट वर्क आई मेक श्योर आई एम एट वर्क, बट वेन आई एम विथ फैमिली आई मेक श्योर आई एम विथ फैमिली। एंड मैं ये जरूर मेक श्योर कर देता हूँ दैट ये इज अ पार्ट ऑफ माई लाइफ, इट इज नॉट माई लाइफ। तो आज प्रायोरिटीज इस तरीके की है ना कि फैमिली फंक्शंस में जाना हो या समाज में जाना हो या किसी भी जगह पे जाना हो, वी मेक श्योर कि हम दोनों चीजों को बैलेंस करके चले। एंड लाइफ भी शायद आप सभी को बता दूं ये ऐसा है, जब तक आप स्टूडेंट होते हो ना आपको बस ये होता है कि यार वो डिग्री लेनी है, डिग्री लेनी है, डिग्री लेनी है। फिर उसके बाद आपको होता है ना पैसे कमाने, पैसे कमाने, पैसे कमाने। ये सब होने के बाद मैं आप सबसे एक फेयर सवाल पूछ रहा हूं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, कितना पैसा लगता है कि बहुत पैसा है? मेरे को जवाब चाहिए, जेन्युइनली जवाब चाहिए, कितना पैसा बहुत पैसा होता है? सर जितना मिले उतना बेटर है। करेक्ट। यस। तो उसका नल कभी बंद हो सकता है क्या? नो। वो आते रहेगा, है ना। वो आते रहेगा जब तक आप चलते रहोगे। पर मैं हमेशा एक दिन कहता हूं ना कि एक दिन असेसमेंट ईयर तो बदलेगा, आप नहीं होंगे। तो मैं इसे शायरी से कहना चाहूंगा, सभी लोग बड़े ध्यान से सुनना, कि शौक पूरे करो, जीवन तो एक दिन पूरा हो ही जाएगा। वेरी बिल्कुल करो, वर्कहॉलिक रहो, काम बहुत पैशन के साथ करो। मेक श्योर कि तुमने जो काम किया है और तुमने उससे जो अर्न किया है, तुम उसको अपने शौक पानी में लगाओ। कोई मतलब नहीं यार वो अक्यूमुलेट करके, मतलब आप सिर्फ खुश हो सकते हो कि बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो गया, क्रेडिट हो गया, क्रेडिट हो गया। क्या मतलब है? मेरे से शायद किसी और पॉडकास्ट में पूछा गया था कि सर कितना पैसा कमाया, मैंने बहुत बेसिक सा जवाब दिया, जितना तुमने उड़ा दिया। कि कमा तो कोई भी सकता है भाई, उड़ाने का हुनर बहुत अलग होता है। कि तुम ऐसी चीज करो जो दूसरों को इंस्पायर भी करे कि यार ये है। चलो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अज्यूम कर लो, अज्यूम, हाँ अज्यूम, यहां पे जितने लड़के हैं पहला सवाल उनसे है,
मुझे एक बात बताओ, अज्यूमिंग यू हैव, लेट से तुम्हारी बची कुची मजबूरी से तुम्हारे पास 50,000 रुपए है, जो तुमने मजदूरी की है ना 2 साल, उससे 50,000 रुपए। टेल मी 5 गुड परफ्यूम्स, क्या करोगे? एक पॉइंट के बाद क्या करोगे? और पता है ये डिग्री इतनी ब्यूटीफुल है ना, यहां पे आरओआई जो है ना तुम्हारे को, ये 2 साल के अंदर में निकल जाएगा। जितना पैसा तुमने सीए में लगाया ना, शायद 1 साल ही बहुत हो गया, 2 साल के अंदर में तुम्हारा निकल जाएगा। तीसरे साल से तुम खुद क्वेश्चन में रहोगे पैसे का करना क्या है। समझ आ रहा है बात? तो ये जो बैलेंस है ना, कि यार तुम कमाओ, वर्कहॉलिक रहो, पागल रहो अपने काम के पीछे, बिल्कुल रहो, बट प्लीज मेक श्योर करो कि तुम दूसरी चीजों में भी आगे रहो। एक व्यक्ति जो सिर्फ बुक के अंदर रह गया ना, उसने लाइफ नहीं जी। उसने बुक जिया है, लाइफ नहीं जी। लाइफ को जियो, बहुत सारी चीजें हैं, राइट? जैसे अगर आपको कोई हॉबी पसंद है, प्लीज उसको फॉलो करो, राइट? आपको अगर एनजीओ से रिलेटेड चीजें पसंद है, प्लीज उसको फॉलो करो। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि एक टाइम के बाद ना आपको लगता है पैसा है, इसको उड़ाए किधर। सो बी अ सीए, ऑल्सो डेट अ सीए। प्यार होना भी बहुत जरूरी है, धोखा खाना और ज्यादा जरूरी है, और उसके बाद उस प्यार के लिए या उस धोखे के लिए ज्यादा कमाना और ज्यादा जरूरी है। ये बात याद रखना। बी अ सीए, डेट अ सीए, हैव अ चार्टर्ड लाइफ। पर वो चार्टर्ड लाइफ होना बहुत जरूरी है, सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट आपके नाम के आगे होना जरूरी नहीं है। True, sir. Thanks for sharing. And we would surely think about dating a chartered. But yeah, let's move ahead. हाँ। So the way you say कि आप वर्कोहॉलिक हो, एंड यू ऑल्सो हैव अ स्टोरी कि जब आप सीए बने, उसके लिए पढ़ाई करने के लिए अब आपने आपका घर छोड़ दिया था, एंड आफ्टर अ फ्यू इयर्स यू रिटर्न। सो व्हाट वाज इन योर माइंड जब आपने पढ़ाई करने के लिए घर छोड़ा? आप पढ़ाई करने के लिए भाग गए थे, इज व्हाट यू से, एंड हम लोग तो पढ़ाई से भागते हैं। बट वॉट वॉज इन योर माइंड जब आपने घर छोड़ा था, एंड वॉट केम टू योर माइंड जब आप घर पे गए थे विथ ऑल द डिग्रीज, सक्सेस एंड एवरीथिंग? वेल ऑनेस्टली, जब भाग गया तो किसी को यकीन नहीं था, क्योंकि 10th में 48% थे। तो किसी को लगा ही नहीं था कि इस लाइफ में कुछ कर लूंगा। आज भी लोगों को शक होता है कि कैसे कर लिया। और जब ये अचीव किया, मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ कि मैं सीए फाइनल में था, और जिस दिन रिजल्ट आने वाला था उस दिन मैं पढ़ा ही रहा था। इनकम टैक्स का लेक्चर था, और मैंने जो सीएस किया है, मेरे स्टूडेंट्स और मैंने साथ में एग्जाम दिए नागपुर में। मेरे स्टूडेंट्स और मैंने साथ में दिए। मेरे लिए और एम्बैरेसिंग हो जाता अगर वो पास हो जाते, मैं फेल हो जाता तो बट नहीं, भगवान ने लाज रख ली। मैं जिस टाइम पे दे रहा था, सारे बच्चे जिनको पढ़ा था उनको पता है विजय भैया का लेक्चर, मतलब आज रिजल्ट आने वाला है। जिन टीचर के साथ पढ़ा था उनको पता है रिजल्ट आने वाला है। मैं बोर्ड के ऊपर लिख रहा था, और इतने में जो हमारे साथ थे वो सर आए, बोले विजय तू सीए बन गया। मेरा हाथ वहीं रुक गया। जितने क्लास के बच्चे थे सब एकदम खुश, बोले सर आज तो पार्टी 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 एक्सेट्रा। और मैंने ना अपने आप को बस एक बात कही है, अब दिखाता हूं मैं सबको, अब दिखाता हूं मैं सबको। फिर यू नो अब अपने को आना था टीचिंग के अंदर में। मेरे जो दो बड़े भैया है, मेरे दो सगे बड़े भैया है, उनका ऐसा था कि अपन टीचिंग में ना, देखो इनिशियली पैसा नहीं होता, नहीं होता, आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। आपको आके फ्री लेक्चर्स देने पड़ते हैं, और हमारा टाइम ना आज के जैसा नहीं है। आज आपको बहुत कम सेटअप के अंदर में आप आ जाओ, यूट्यूब के ऊपर चालू कर दो, फ्री रिविजन फ्री 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 देना चालू कर दो, एंड सम ऑफ द स्टूडेंट विल फॉलो, मतलब वो हो जाएगा। राइट? हमारे टाइम पे ना पहले बच्चों के सामने आके प्रूव करना होता था, क्योंकि तब तक के यूट्यूब एंड बाकी चीजें आई नहीं थी, एग्जिस्ट नहीं करती थी। तो वहां पे जाके प्रूव करना होता था। तो 1 साल जब सीए बन गए, एंड आई डिसाइडेड कि नहीं यार, अपने को तो टीचिंग में आना है, अपने से काम नहीं हो पाएगा दूसरा। तो पैसे जो थे वो बहुत कम आते थे। एक दिन मेरे दोनों भाइयों ने मेरे को बैठाया और बैठा करके बोला कि यार हमारे यहाँ जो सीए कर रहे हैं जॉब, उनको 50,000 60,000 मिलता है, तू क्या ही अर्न कर रहा है, क्या कर रहा है? अच्छा देखो, भाई ऐसे बात नहीं करता। जिस दिन भाई बात करने बैठ जाए ना, समझ लो आप कि कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। समझ रहे हैं ना? भाई और बहन ना बात करते नहीं, जब वो बोल देना वी नीड टू टॉक, तो तुमको सबसे पहले यह याद आता है कि उसको कौन सा कांड पता चला है। तुम सारे दोस्तों से कंफर्म करते हो। फिर मैंने भाई से पूछा, भाइयों को बोला, मैं बोला यार मेरे को एक करने दो, आई नो ये हो जाएगा। तो उन्होंने बोला देख, अगर हो सकता है तो ठीक है, नहीं तो हम रिकमेंड कर दे क्या। ये एक मोमेंट को बाजू रखता हूं। दूसरा मोमेंट क्या था, मेरे साथ ना मेरा एक कजिन था जो सीए ही कर रहा था, लॉन्ग कजिन, सीए ही कर रहा था, और वो आया था रैंक में। अपन हो गए फेल, वो आया रैंक में, तो उसको अच्छा जॉब लग गया।
3 महीने के अंदर जॉब लगते उसने अपने पेरेंट्स को फॉरेन भी लेके चले गया। 3 महीने बाद उसने गाड़ी भी ले ली। ये 6 महीने में अपने को फिर एक अटेम्प्ट लग गया, अपन इधर आ गए। और तीसरा सिचुएशन था कि मेरे एक कजिन के अंदर में ना, बुआ का लड़का, उसने कहा था कि यार 48% में तो तू क्या सीए बनेगा, बहुत सारे लोग आए तेरे जैसे, है ना। ये 3 सिचुएशन से आपको कुछ कनेक्ट करूंगा, जरा सुनिएगा, पेशेंस रख के सुनिएगा। सीए बने अपन। सीए बनने के बाद मेहनत करी, 3 साल बाद बच्चों का भी प्यार मिला, सारी चीजें कंप्लीट हुई। कंप्लीट होने के बाद ना, पहली बार वो सीन आया कि पैसे की जरूरत पड़ी। तब तक अपन ने थोड़ा बहुत हैंडफुल कमा लिया था, अपन ने भेजा। तब भाई वगैरह को बिलीव हुआ, नहीं यार ये कुछ तो कर रहा है, ऐसा नहीं है। और जब उनको रिकॉग्निशन पता चला उनके शहर में, अच्छा आपका भाई है क्या ये, ओहो अच्छा अच्छा ऐसा ऐसा है, तब मजा आया। तो भाई लोग वहां शॉर्ट हो गए। दूसरा जो कजिन था ना, उनके साथ बड़ा मजा आया कि मैंने डायरेक्ट कार ली थी, अपने पूरे खानदान की सबसे महंगी वाली कार। तो डिस्कवरी थी वो द दिन। तो मैंने डायरेक्ट फोटो वो हैप्पी फैमिली ग्रुप पे डाला। वो नहीं होता एक ग्रुप हैप्पी फैमिली, जिसमें हैप्पी एक दूसरे से कोई नहीं है पर ग्रुप जरूर है। तो वहां पे ऐसा बम फूट गया कि भाई इसने ये क्या कांड कर दिया। उसके बाद ना, जिस कजिन ने ये कहा था ना कि तुमसे ना हो पाएगा, उसके लड़के की शादी थी। पहली बार वो गाड़ी को लेकर के, बाकायदा ड्राइवर को लेकर के ना, मैं सीधा उस शादी में गया था। दूल्हा कहीं और, अपनी गाड़ी की रौनक कहीं और। थर्ड डे ना, समझ में आ गया आई हैव डिड इट। और सबसे ज्यादा मजा पता है कब है? जब तक ये पैसा नहीं था ना, तब तक के पापा को ना वो इज्जत नहीं मिलती थी। मतलब कभी शादी वादी में जाते थे तो यू नो पीछे बैठते थे, सामने नहीं बुलाया जाता था। लेकिन जिस दिन वो कार उधर शादी में खड़ी कर दी ना, अरे अरे हरी बाबू आओ 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 बैठो, विजय जी आए हैं विजय जी। मेरे को समझ में आ गया ये माया ना पैसे की है, बाकी किसी चीज की नहीं। बट वेन यू डिड इट ना, मजा आ जाता है। और उससे ज्यादा, मतलब पीक मेल कंटेंट वाली बात बोलूं, पुणे से नागपुर में समृद्धि एक्सप्रेस आता है। बहुत मेहनत करो मेरे भाई। जिस दिन वो रेंज रोवर का ऐसा स्टेयरिंग पकड़ोगे ना, और वो इधर उतारोगे ना समृद्धि एक्सप्रेस वे पे, और पहली बार तुम लड़के हो लड़की हो, खुला करना खिड़की को, ऐसा स्टेयरिंग पकड़ना और सिर्फ पैडल पे पैर रखना, उस दिन तुमको लगेगा यू डिड इट। और उसके बाद ना तुमको कोई बहुत बड़ी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी कि वाई यू व्हाट यू फील। वो जो चलती हवा और 110 की स्पीड है ना, वो फील है, बस वही फील है। खत्म। Great, sir. We surely felt it. And connecting to the car वाला thing, आपकी like अगर कोई हमें पूछे तो we have different choices, but आपका Honda City के साथ में एक अलग ही relation है. So we would love to know कि what was that story and why do you love Honda City specifically the most? खैर अब तो वो बहुत अलग हो गया स्टोरी। आज भी आप मेरे से पूछोगे तो मेरा फेवरेट गाड़ी वही है। खैर उसके बाद अब 8 गाड़ी है, वो अलग विषय हो गया। पर आज भी फेवरेट गाड़ी वही है। आज भी फेवरेट गाड़ी वही है। रीजन ऐसा था कि मैं जब मेरे घर से भागा था, तो मैं गया था वन ऑफ माय रिलेटिव के यहाँ, मेरे बुआ जी फूफा जी के यहाँ। और लड़के हैं तो लड़कों के शौक पानी अलग होते हैं। मतलब हमारे को कोई फैंसी जगह पे नहीं जाना, PS5 चाहिए। हमको कोई फैंसी एक्सेसरीज नहीं चाहिए, पर हमको बाइक चाहिए। तो लड़कों के शौक होते हैं। मतलब जिस लड़की को कभी ये नहीं समझ में आया ना लड़कों को क्या गिफ्ट दे, मैं आपको मस्ती में समझाता हूँ। हमें आप टाइम दे। टाइम का मतलब क्या है? हमें खाली छोड़ दे। दो लड़के जब बाजू बैठे ना, शायद दिन भर एक भी बात ना करे, पर वो फील है बस उसके बाजू बैठना है। हम दोनों को पता है हम दूसरे से बात करेंगे तो गाली मारेंगे, पर चाहिए बाजू बैठना है। दूसरा होता है आप गाड़ियां दे हमें, हमें बहुत पसंद आती है। आप हमें एक्सेसरीज दे, बहुत पसंद आती है। तो ये जो गाड़ी वाला सीन था कुछ ऐसा था कि फुफाजी के पास में एकदम नई गाड़ी आई थी। द गाड़ी यही थी होंडा सिटी, जिसको मैंने पहली बार ना ऑटो इंडिया करके एक मैगजीन आता है उसके अंदर में देखा था। नई नई गाड़ी थी, नया मॉडल था और ब्राउन कलर आया था, तो बहुत बढ़िया था। मैं शायद किसी दिन जल्दी सो गया, अगले दिन उस गाड़ी की डिलीवरी हुई। बारिश थी, जैसा अभी मौसम है मुंबई और पुणे का, बिल्कुल वैसे ही।
मैं बाहर गया और एकदम वो गाड़ी सामने है। इमेजिन करो 17-18 साल का कोई बच्चा जिसने कुछ देखा है, बहुत पसंद आई और वो सामने है ना। तो मैं बिल्कुल वो भीगे हुए पैर और भीगा सा बदन लेकर के गाड़ी में चला गया। ऑब्वियस सी बात है, मेरे को अब समझ आता है कि वो क्या मोमेंट रहा होगा मेरे फूफा जी के लिए भी। तो मैं जब जा करके बैठ गया, वो बाहर आए और थोड़ा सा गुस्सा हो गए, और गुस्सा होकर के थोड़ी सी गाली माँ बहन की निकाल दी। बट क्या होता है ना, जब आप यंग होते हो और बहुत रिबेल होते हो, आपको वो चीज इधर नहीं सीधी इधर जाती है। तो बोले पूरे खानदान में भी कभी किसी ने होंडा सिटी देखी है क्या, तूने कैसे अंदर रख दिया, किससे पूछ के अंदर रख दिया, लाइकी है क्या, औकात है क्या, ऐसे कुछ बहुत सारी चीजें कह दी। बहुत डिटेल स्टोरी है। वो दिन ना वो चीज लग गई। और मैं चाहता हूं आप सबको भी कोई ना कोई बात ऐसी जरूर लगे जो आपको मोटिवेट करे। वो बात लग गई। मैं रोते रोते गाड़ी से उतरा और मैंने अपने आप से एक वादा किया कि इसके आगे अगर कोई गाड़ी होगी तो यही होगी, होंडा सिटी, ब्राउन कलर, टॉप मॉडल। और ये जो गाड़ी मैं रोज पोंछ रहा हूं, मैं इसको कभी पोछूंगा भी नहीं। जैसी रहेगी वैसी रहेगी, पर गाड़ी तो अब यही रहेगी। फिर सीए बने, बाकी सारे ड्रीम्स पूरे किए। जब गाड़ी लेने की बात आई तो वही गाड़ी। पहली बार जब उस डॉक्यूमेंट को साइन कर रहा था ना वो गाड़ी लेने के लिए, वो फील बहुत अलग था। वो था कि यार अचीव किया है। इट इज नॉट अबाउट द वैल्यू ऑफ द कार, इट इज ऑलवेज अबाउट द वैल्यू ऑफ योर ड्रीम्स जो इंपॉर्टेंट है। वो वैल्यू ऑफ द ड्रीम, सी इट मे बी अ रॉयल एनफील्ड, मेरी बात समझना। बट आप रॉयल एनफील्ड को भी लेकर के उड़ोगे ना, तो आपको लगेगा उड़न खटोला उड़ा रहा हूं। वो वैल्यू इररिलेवेंट है यार, वैल्यू इररिलेवेंट है। चीज इंपॉर्टेंट है, वो है काम खत्म। तो ये वो कार है। आज भगवान की दया से बहुत सारे गाड़ी है, शौक है, और इनफैक्ट बिजनेस भी है गाड़ियों में। बट गाड़ी तो आज भी वही फेवरेट है। मजा तो उसमें ही है, क्योंकि वो ना, बाकी गाड़ियां हैं वो सपना है। वो गाड़ी नहीं है, वो सपना है। बाकी गाड़ियां हैं, तो मजा तो उसी में है आज भी। और बार बार ना उसके सामने खड़े रह करके ना फील होता है। बाकी गाड़ियों के सामने खड़े रह के वो फील नहीं आता, वो गाड़ी के सामने खड़े रह के फील आता है। लाइक की तो मेरी यही है। बाकी सब तो मैंने कमाया है, उसको अर्न किया है। तो आपने गाड़ी का बोला, लाइक इट्स योर पैशन, सो व्हाट वुड बी सम स्किल्स दैट यू विल से कि सीए स्टूडेंट्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो इनकलकेट करें अपने में, लाइक आउटसाइड ऑफ स्टडीज? बेसिकली मैं आपसे कहूंगा कि अगर आप सी, नॉट जस्ट सीए, आप सीए में कुछ भी कर रहे हैं, आपके पास आज के तारीख में 5 स्किल सेट होने चाहिए। मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूं। मैं रीसेंट पास में हमारे फर्म के अंदर में कुछ 2 सीएस आए थे, है ना। आप बिलीव करेंगे, उनके मार्क्स लगभग लगभग 360 से लगभग लगभग 390 तक के थे। मतलब करंटली तो ये बहुत अच्छे मार्क्स हो गए, लगभग लगभग 400 के करीब आ रहे हैं मतलब। बट पता है उनके अंदर में ना ज्ञान नहीं था। और मार्केट में ना डिग्री हो पर नॉलेज ना हो ना, तो आप किसी काम के नहीं है। मतलब फिर आपका वैल्यू 15-20 हजार का ही है, आप 50 हजार एक्सपेक्ट करके ही मत आइए मार्केट में। क्या स्किल सेट होने जरूरी है? क्या स्किल सेट होने जरूरी है? पॉइंट नंबर 1, यू शुड नो हाउ टू टॉक। दिस इज द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग। एंड यू शुड टॉक अ लॉट। टॉक, सी, इट इज इररिलेवेंट आप किस भाषा में बात कर रहे हैं। आप ह्यूमन है, सबको समझ में आएगा आप किस भाषा में बात कर रहे हैं। बट यू टॉक, एंड यू टॉक टू लॉट ऑफ पीपल। उनसे कुछ डायलॉग्स जनरेट करो, और जहां डिलीवर करना है वहां डिलीवर करो। पॉइंट नंबर 1, सो यू मस्ट नो हाउ टू टॉक। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? प्लीज व्यू मेनी ऑफ द टॉक शोज। आप बहुत सारे लोगों से देखो कि वो क्या बात करते हैं, वो कैसे बात करते हैं, राइट, वो किस माइंडसेट से बात करते हैं। ये बहुत जरूरी है। लाइफ में ना लेफ्ट और राइट स्वाइप आपको उतना मजा नहीं देगा जितना आपका क्रेडिट बैलेंस ऊपर जाते हुए जो स्वाइप होगा ना, वो बैलेंस मजा देगा। और ये तब हो सकता है व्हेन यू नो कि आपको क्या स्किल सेट के लोग मिलते हैं। तो आपको बहुत सारे लोगों को सुनना है, सुनने की कैपेसिटी बहुत होनी चाहिए। दूसरा स्किल सेट है रीड अ लॉट। सी, जब आप रीडिंग करते हैं ना, तो आपको बहुत कुछ चीजें समझ में आती है, जो सिर्फ, सी, हर इंफॉर्मेशन ना इंस्टाग्राम की रील नहीं देगी, और पैसे वाली इंफॉर्मेशन वहां आएगी ही नहीं।
मैं आपको फैक्ट बताता हूं। आप सभी लोगों ने अब तक के ऑडिट किए होंगे, आप सबको पता है इनसाइडर्स इंफॉर्मेशन कभी रील्स पे नहीं आती। तो यू शुड नो कि आपको पढ़ना है। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूं, सियान करके एक कंपनी है, ठीक है, वन ऑफ द मिनिस्टर के जो बेटे हैं ना, वो है उसके अंदर में। इथेनॉल ब्लेंडिंग की बात चल रही है, बराबर है। ये इथेनॉल ब्लेंडिंग की बात आज से नहीं चल रही है, कई सालों पहले से चल रही है। इनफैक्ट आप में से किसी ने अगर मेरे साथ इंटर पढ़ा होगा तो मैंने आपको एक शेयर सजेशन कभी दिया था, सोलर इंडस्ट्रीज। वो शेयर प्राइस 9,000 पे था। अगर आप उस कंपनी के बारे में पढ़ते ना तो आपको समझ में आता कि इसका प्राइस क्यों 16,000 17,000 हिट करना चाहिए, क्यों हिट करना चाहिए जेन्युइनली। और भाई साहब आप मास्टर्स हो फाइनेंशियल डेटा के, आपको ना चीजें देख के समझ में आती है। और सूनर आपको ये समझ आ चुका है, सस्पेंस अकाउंट नहीं, वो क्लोजिंग स्टॉक है। खैर जिसको नहीं समझा पोगो, समझ में आया। सो आपको बस ये इंटरप्रेट करते आना चाहिए, इट इज नॉट द वैल्यू ऑफ बैलेंस शीट दैट मैटर्स, इट इज हाउ द कैश फ्लो कम्स टू कंपनी दैट मैटर्स। अगर कंपनी के कैश फ्लोज बहुत अच्छे हैं ना, बैलेंस शीट वैल्यू इररिलेवेंट है। कैश फ्लोज इज द गेम। तो आपको पढ़ते आना चाहिए, और बहुत कुछ पढ़ो, सिर्फ कंपनीज के डेटा मत पढ़ो। आप उठा करके आपको जो पसंद आता है आप वो पढ़ो। तीसरा स्किल सेट है, यू मस्ट नो सोशल मीडिया राइट नाउ। आपको सोशल मीडिया पता होना जरूरी है, यूज करना बेवकूफी, समझना कि ये कब वर्क करता है, कैसे वर्क करता है। आपका लिंक्डइन प्रोफाइल बहुत अच्छा होना चाहिए। यस, आज के तारीख में अगर आप देखें, आप कुछ भी उठा करके इंस्टाग्राम पे मत डालिए, आप पॉलिटिकल चीजें उसके ऊपर पे मत डालिए अनलेस एंड अनटिल यू आर सक्सेसफुल। क्योंकि जब तुम ज्वाइन करते हो ना, बिलीव मी, तुम्हें सर्च किया जाता है। चलिए बाकी सब छोड़िए, आप में से कई लोग पहली बार मेरा पॉडकास्ट देखेंगे या पहली बार मुझे एज अ टीचर देखेंगे। आप सबसे पहले जाकर के क्या करोगे, यूट्यूब पे सर्च करोगे विजय सारडा है कौन, या इंस्टाग्राम पे सर्च करोगे विजय सारडा है कौन। जब आपको कोई प्रोफाइल विजिट करेगा ना आज के तारीख में, तब आपका अपीयरेंस बहुत बढ़िया होना चाहिए। आपको गूगल कैसे वर्क करता है, गूगल एड्स कैसे वर्क करते हैं, राइट, आपका वो प्लेसमेंट सही जगह पे होना चाहिए। तो गूगल एड्स कैसे वर्क करता है। चौथा स्किल सेट है जो आपको बिल्कुल आना ही चाहिए, वो है हाउ टू रिमेन काम। ये बहुत बढ़िया, मैं आपको बता रहा हूं हाउ टू रिमेन काम। सी, आप जैसे जैसे बड़ी जगहों पे जाएंगे ना, आपको समझ में आएगा आपका ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन ये है। आपको ये समझ आएगा कई जगह पे जाके, बी काम, सुनो ज्यादा, बोलो कम, तो आपको कई इंफॉर्मेशन समझ में आएगी। सो इट इज नॉट ऑलवेज द ऐप, इट इज द ह्यूमन थिंग ऑल्सो जो आपको समझनी पड़ेगी कि वहां पे चल क्या रहा है, देखो वहां हो क्या रहा है, कैसे चीजें अलग तरीके से चल रही है, तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। पांचवा एक और स्किल सेट जो आपके अंदर होना चाहिए, हिम्मत। ये स्किल सेट ना, सी आप मेरे जैसे व्यक्ति से पूछेंगे ना, आपको मैं कोई ऐप नहीं बताने वाला ये ऐप देख लो, मैं डिफरेंट पर्सन हूं और कैटेगरी अलग हूं। आपको हिम्मत बहुत होनी चाहिए, रिस्क लेने का एपेटाइट, यार ये करते हैं, ये रिस्क लेते हैं, कुछ तो देखेंगे। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मैं पहली बार ना ऑक्शंस में आ रहा था, प्रॉपर्टी ऑक्शंस होते हैं ना, मैं पहली बार प्रॉपर्टी ऑक्शंस में आ रहा था। प्रॉपर्टी ऑक्शंस के बिजनेस में जब मैं एंटर कर रहा था, मतलब व्हाट आई डू इज, जिन जो एनपीएस हो जाते हैं, आपने देखा है बैंक एनपीएस हो जाते हैं, तो वो जो बैंक एनपीएस हो जाते हैं वो अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज करते हैं। बैंक क्या करती है, अल्टीमेटली इस प्रॉपर्टी को सेल करती है। तो ये जो सेल करती है इसमें कौन है, ऑक्शनर्स। तो मैंने बोला यार ये ऑक्शन बनते कैसे हैं। तो पहले बहुत सारा पढ़ने की हैबिट ने मुझे ऑक्शन में धकेला, पहली बार रिस्क लेने की कैपेसिटी लाई, पहला ऑक्शन किया। पहला ऑक्शन करते ही हमने उसको 3.5 लाख रुपए के अंदर में प्रॉफिट में बेच डाला। मैंने देखा यार 3.5 लाख रुपए में मैंने जेन्युइनली कुछ नहीं किया, मैंने प्रॉपर्टी ली, ऑक्शन कैसे करते ये समझ लिया, प्रॉपर्टी ली, और प्रॉपर्टी ले करके मैंने उसको बेच दिया और 3.5 लाख रुपए कमाए। और पता है आपको मैंने ऑक्शन कैसे समझा, बिल्कुल, मतलब शायद ये गलत जगह हो सकती है पर मैं आपको समझाना चाहता हूं। 90 रुपए के रॉयल चैलेंज के क्वार्टर पे, लिकर का नाम है। अब आप बोलोगे सर क्या बात कर रहा, एकदम जेन्युइन बात कर रहा हूं। मैंने ना बहुत सारा पढ़ने की कोशिश की, कुछ चीजें समझी कुछ चीजें नहीं समझी। तो जो
फर्म, जिस कंपनी का जो ऑक्शन कर रहा था, जिस बैंक का, आई डोंट वांट टू नेम, उसके ऑफिसर के पास मैं गया। बिंग मैंने पहले जुगाड़ देने की कोशिश करी। मैंने कहा जब किसी चीज की चाबी ना हो तो चाबी तो होती ही है। तो मैंने पहले पैसे देने की कोशिश करी। टू माय सरप्राइज वो बंदा पैसे लेता ही नहीं था। उसने मेरे को 2 बार झापा है। मैंने क्या कहा, सुनने की कैपेसिटी, चुप, सॉरी गलती हो गई सर, नहीं मालूम था सर, है ना, नहीं मालूम था। मैं 6 बार उस आदमी के पास गया, जब भी वो कहता था सिर्फ सुनता रहता था। फिर क्या हुआ, मैं एक दिन ऑक्शन के 2 दिन पहले गया और मैंने जाकर के ना चुपचाप हाथ जोड़े। क्योंकि है ना, देखो कई बार ना मार्केट के अंदर में ना हर आदमी पैसे से नहीं, कोई आदमी इज्जत से भी मानता है। ये मेरे को किसी सीए डिग्री और कोर्स या ऐप ने नहीं सिखाया, ये मेरे को एक्सपीरियंस ने सिखाया। मैं गया, मैंने लिटरली हाथ जोड़ दिया। उसने मेरे को कहा है साल्ट, आपको लगता है ऑप्शन मिल जाएगा आपको? मैंने बोला सर मिलेगा या नहीं मिलेगा मेरे को पता नहीं, पर आपको गुरु मानना चाहता हूं और मेरे को ये गेम सिखाओ। तो बोले अभी क्या कर रहा है? मैं बोला सर कर तो कुछ नहीं रहा, आप जो बोलो वही कर रहा हूं, आप सिखा दो, आप जो बोलोगे मेरे को सीखना ही है। चल क्वार्टर पिला बोले। मैं थोड़ा शौक था, क्योंकि जो बंदा पैसे नहीं ले रहा वो ये बात कैसे कर रहा है। ये स्किल सेट है। अब ये स्किल सेट ना, क्योंकि आप में से शायद ही कुछ लोग समझेंगे, मैं आपको यहाँ पे लिकर की प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि आपके पास ये स्किल होना चाहिए कि आप हर तरीके के, हर किस्म के लोग और हर जगह जाने के लिए रेडी रहो। अब मैं इसके पहले जब भी गया था, मैं थोड़ी सोफेस्टिकेटेड जगह पे गया था, है ना। वो आदमी मुझे लेजिट शेडी से प्लेस पे लेके गया जहां शायद मैं कभी कदम भी ना रखूं। वहां गया, उसने मंगाया, बैठा, घेना रखा। मगर नहीं सर, आज तो सिर्फ ज्ञान लूंगा। और उस बंदे ने मुझे वो चीज बोली जो किसी वेबसाइट पे और किसी जगह पे नहीं थी। मैंने पहली बार 25 लाख रुपए का रिस्क लिया और मैंने वो ऑप्शन ले लिया। ऑक्शन लिया तो लिया, मैंने उसको 3.5 लाख में लिटरली 1 हफ्ते के अंदर में पलटाया। 3.5 लाख यार, कोई बंदा साल भर का पैकेज है मेरे भाई उसका, मैंने 3.5 लाख में ठोका। उसके बाद हमने एग्रीकल्चर लैंड ली उसी पैसे से। आप सब बिलीव कीजिए, किस्मत चली या नॉलेज बताइए या कॉन्टैक्ट बोलिए कि हमारे को पता था, वो लैंड कंपलसरी एक्विजिशन में 5x में गई। तो मेरे को ना फंडा समझ में आ गया। मैंने बोला यार ये कोई बुक ना सिखा सकी, मां कसम, जितना एक क्वार्टर ने सिखा दिया। सो मतलब क्या है, अगर मेरे पास ये होता ना कि मैं इस जगह पे नहीं जाऊंगा या इस तरीके के लोगों से नहीं मिलूंगा या ये ऐसा होगा या मैं उसको जज कर लेता। मैंने सिर्फ 2 बात सीखी, पहला हाथ जोड़ना, दूसरा इससे ज्यादा ना इससे काम लेना। ये ज्यादा रेलेवेंट है। ये स्किल सेट आप में होना चाहिए कि आप सुनो, समझो और आगे बढ़ने के लिए कुछ नई चीज करो। एंड द लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, जवाब जरूर देना आपकी बेइज्जती का। सेल्फ रिस्पेक्ट का जवाब आपने जरूर देना, और वो जवाब एक ही अच्छे स्किल सेट से देना, सक्सेस। तुम ना कुछ भी करो, रात में सो नहीं सो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक अटेम्प्ट में बनो 10 अटेम्प्ट में बनो कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमको बस एक चीज स्किल सेट याद होनी चाहिए, रोज सुबह उठना पड़ता है, काम पे जाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, 10 लोगों के सामने हाथ जोड़ने पड़ते हैं और 10 लोगों से हाथ जुड़वाने पड़ते हैं। मेहनत से काम होगा, शॉर्टकट नहीं होता, और करने से ही होगा, सुनने से नहीं होगा, सिर्फ करना पड़ेगा। जिस दिन तुमको ये फंडामेंटल समझ में आ गया ना कि देर इज नो शॉर्टकट, कि यार तुम सिर्फ रिवीजन लेक्चर देख करके अटेम्प्ट नहीं दे सकते, तुमको सॉल्व करना पड़ेगा। रोज सुबह उठना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, अपने ड्रीम्स के लिए वर्क करना पड़ता है। ये स्किल सेट भी तुम में होना चाहिए कि रोज सुबह उठना है और मेरे को मेहनत करनी है। ये स्किल सेट जब तक तुम्हारे पास है ना, तुमको किसी चीज की कमी नहीं हो सकती, किसी चीज की नहीं। आई एम सो सॉरी अगर आप कोई ऐप या कोई कुछ और ढूंढ रहे थे, तो आई एम नॉट दैट गाय। आप अगर कोई ढूंढ रहे थे कि यार 5 स्किल सेट बता दो कि रोज सुबह उठ के भागना होता है, मोटिवेशनल कोट पढ़ने होते हैं, नहीं, हट। तू दूसरों के लिए मोटिवेशन होना चाहिए भाई। मोटिवेशनल कोट पढ़ के अगर मोटिवेट हो जाते ना, तो हजारों पढ़े गूगल पे, कोई नहीं होता उससे मोटिवेट। नहीं सर, देखा हम लोगों ने, लोगों को डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट।
So हम लोग ने ये प्लेटफॉर्म बनाया ताकि सीए स्टूडेंट्स कैन बिल्ड अपॉन सम ऑफ दी स्किल्स दैट यू हैव मेंशन लाइक नेटवर्किंग कम्युनिकेशन. सो इस पे आपका क्या विचार है अबाउट पीडब्ल्यूसी सर, जो ये बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप लोग। सबसे पहली बात तो इस पॉइंट पे ये समझना कि नेटवर्किंग बहुत ज्यादा जरूरी है, ये बहुत बढ़िया विचार है। मतलब मैं इस कम्युनिटी से, द विनर सर्कल से बिल्कुल जुड़ा रहना चाहूंगा, क्योंकि यू नो नेटवर्क इज नेटवर्थ। मैं आपको सही बताता हूँ, इफ यू वांट टू बी अ वेल ना, यू नीड टू हैंग आउट विथ वेल्स। आप उन लोगों के साथ, आप बेवकूफ लोगों के साथ रह करके ना समझदारी वाली बातें नहीं कर सकते। आपने देखा होगा आपके ग्रुप के अंदर में ना एक बहुत बाज व्यक्ति है जो कहीं नहीं पहुंचा। खैर, जो आपने समझा वो भी ठीक ही है। तो आपके आपके ग्रुप में है वो आदमी, कहीं रीच आउट नहीं होता। मेरी एक बात समझिए, ये जो नेटवर्किंग वाला प्लेस है ना, ये बहुत जरूरी है। मैं चाहूंगा कि हर बच्चा, भले वो सोच भी रहा है ना प्रोफेशनल कोर्स करने का, द विनर सर्कल या ऐसी कोई भी जगह है ना, उनसे जरूर जुड़ें। आप 10 लोगों से जुड़ते हो, 10 लोगों का फंडामेंटल समझते हो, 10 लोगों के व्यूज समझते हो, तब आपको लगता है कि नहीं यार ये करना है। जैसे मैं रिसेंटली एक व्यक्ति से मिला, वो व्यक्ति का विजन इतना क्लियर है ना कि अगले 5 साल के अंदर में मुझे मेरे एसेट को 800 करोड़ तक के पहुंचाना है, मुझे राज्यसभा की सीट के लिए लड़ना है, मैं 5 साल बाद आपको इधर दिखने वाला हूं। अरे वो बोल रहा है, कोई बैकअप नहीं, आज किसी पॉलिटिकल व्यक्ति से कनेक्ट नहीं, पर वो बोल रहा है। बोलना इंपॉर्टेंट है ना मेरे भाई, कोई थॉट तो दे दे यहां तक का। आप समझ रहे हैं क्या यार? मेरे फैमिली के अंदर में देर आर मेनी पीपल हु मे हैव अर्नड अ लॉट, बट दे स्टिल कांट टेक द रिस्क टू बाय द रेंज रोवर इन देयर 30s। आप में वो, मेरे को ये लेना है, मेरे को ये करना है, मेरे को ये बोलना है, और ये नेटवर्क से होता है। क्योंकि मेरा जो सर्कल है ना, जितना भी, राइट, ये सभी लोग ना सिर्फ मल्टीप्लिकेशन पे बात करते हैं। अजीब पागल लोग हैं, क्योंकि सबने गरीबी देखी है। मेरी बात समझना, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन पे बात करते हैं। यार एक काम करते हैं, ये कर लेते हैं, इससे ये हो जाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। यू नो हम लोग ना, हम लोग में से एक जन जो है, ये वन ऑफ द बिग फोर्स में था। वो कहता है यार, हमारी ऐसी बातें चल रही थी कि यार क्या किया जा सकता है, कुछ तो नया करते, कुछ तो नया करते। वो कहता है यार देखो, एक चीज है बहुत अजीब है, अपने धंधे से रिलेटेड नहीं है, पर थोड़ा थोड़ा सब डालोगे तो धंधा बना लेंगे। बोले कैसे? बोले यार देख, बिग फोर्स के अंदर में ना सारे पार्टनर और उनके आर्टिकल्स को ना गाड़ी लगती है। तो यार अपन क्या करते हैं, अपन गाड़ी देते हैं, है ना। कंपनीज को जो गाड़ी सप्लाई होती है ना, अपन गाड़ी देंगे। एक एक सब ऐड कर लो, एक एक दो दो गाड़ी, जिसको जो करना है, जितना डेप्रिसिएशन जिसको क्लेम करना है उतना सब ऐड कर लो। चलो वर्कआउट करते हैं। हमने 4 गाड़ियों से शुरुआत करी थी। गाड़ी के पैशन से कब धंधे में उतर गए हमको खुद को नहीं समझ में आया। आज 16 गाड़ियां चला रहे हैं, अलग अलग कंपनीज को दिए जा रहे हैं, और उससे पैसिव इनकम जनरेट हो रहा है। 16 गाड़ियां चला रहे हैं, जिस दिन हमको चाहिए वो हमारे पास आ जाती है। फ्लीट है, मतलब लिटरली ऐसे निकाल सकते हैं 16 गाड़ियों की, 16 गाड़ियों को। और हर एक ने एक एक दो दो ले ली, हर एक को एक 30-40,000 का पैसिव इनकम जनरेट होना चालू हो गया। डेप्रिसिएशन जिसको क्लेम करना है वो क्लेम करे जा रहा है, द ओनर, और अपना काम हुए जा रहा है। तो आपको वो माइंडसेट वाले लोग चाहिए, है ना। और मैं आपसे सही बात कहता हूं, इस टाइम पे बहुत समझना जरूरी है ये, इस तरीके के नेटवर्क ग्रुप में, कि आपके दोस्त ग्रुप अलग हो गए। वो आपको तब चाहिए जब आप इन लोगों से फ्रस्ट्रेट हो जाओ। ये आपको कब चाहिए? आप उधर की जिंदगी से फ्रस्ट्रेटेड हो इसलिए चाहिए। सो बी इन टू दिस पर्टिकुलर सर्कल और काइंड ऑफ दिस सर्कल, एंड यू पीपल आर डूइंग रियली ग्रेट। मैं आपको बोलूंगा, जितने ज्यादा लोग हो सकते हैं, जितनी ज्यादा फेटर्निटी हो सकते हैं, इन सबको जोड़ो, ताकि सबके एक्सपीरियंसेस आए। एंड बिलीव मी, हम सबके एक्सपीरियंसेस अलग होंगे अपने अपने लाइफ्स को लेकर के। एंड पता नहीं आप किसको कब कहां कनेक्ट कर जाए। परफेक्ट सर, एंड आई ऑल्सो रिमेम्बर यू वंस शेयरिंग दिस इन लेक्चर्स कि आप 8 दोस्त हो जो सब एक साथ सीए बने, एंड आप सब अलग अलग फील्ड्स में, और आपका एक फ्रेंड है जो सबके पोर्टफोलियो संभालता है। सो द वे यू हैव योर फ्रेंड सर्कल, इन द सेम मैनर दिस इज आवर फ्रेंड सर्कल एंड ऑल्सो सर्कल वेयर वी डिस्कस आइडियाज. So, do you see your own younger self in the way we are doing these all new things and coming up with new initiatives? या एब्सोल्युटली, क्योंकि सी आप लोग ये जो कर रहे हैं ये बहुत बढ़िया चीज है। और बिलीव मी, मैं आपको बताता हूँ, आप लोगों में से कई ऐसे लोग होंगे जो फिल्टर हो जाएंगे और एक ऐसा कोर ग्रुप बनाएंगे ना,
जो आगे चल के बहुत कुछ हेड कर रहा हो। आर यू गेटिंग द पॉइंट? हम भी जो थे वो 15-20 लोग थे, जिसमें से फिल्टर आउट होकर के 6 आए, जिनकी सारी आदतें और हरकतें मैच होती है ना? जैसे अपन बोलते हैं ना, दो लोग दोस्त कब बनते हैं? दो लोग दोस्त तब बनते हैं जब उनकी बुरी आदतें मैच करती हो। अच्छी आदतें वाले तुम्हारे दोस्त नहीं है ना? बुरी आदतें तुम्हारी मैच होनी चाहिए। तो यही बात ना शायद विनर सर्कल्स को और आगे लेके जाएगी, कि आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका माइंडसेट और ये जुड़ेगा। और इसके अंदर में देखिए, शायद आज ये सर्कल बहुत छोटा है, पर ये सर्कल जैसे जैसे वाइड होते जाता है ना, सर्कल बढ़ता जाता है। तो आपको कौन सा व्यक्ति कब मिलेगा और उसका क्या नेटवर्क और नेटवर्थ होगा, आपको नहीं पता। और शायद अगर आप कुछ बड़ा करने का सोच रहे हैं ना, अकेले मत कीजिए। जेन्युइनली बोल रहा हूं, अकेले मत ही कीजिए। क्योंकि अकेले आप सक्सेस पाइए, धंधा आप साथ में कीजिए विथ क्लैरिटी। धंधा साथ में कीजिए, कुछ उसका रिस्क कुछ आपका रिस्क। ठीक विनर सर्कल्स के अंदर में भी कुछ इनका कुछ आपका। हो सकता है आप में से कुछ एक आधा व्यक्ति हो जिसको कंटेंट क्रिएशन में मजा आता हो। आई गेस देव अभी कह रहा था मुझे कंटेंट क्रिएशन में मजा आता है। यार एक बंदा अगर कंटेंट क्रिएशन को पकड़ के आगे निकल जाए, पूरा का पूरा ग्रुप विनर सर्कल को लेकर के आगे निकल जाएगा। मेरा बात समझना, आपको हर तरीके के लोग चाहिए। एक आदमी आपको चाहिए जो कैलकुलेटिव हो, हर चीज में बहुत बारीकी से कैलकुलेशन करे, राइट? आप लोगों को एक चाहिए जिसमें बोलने और दिखने की ताकत बहुत बढ़िया हो। जैसे हमारे ग्रुप के अंदर ना दो लोग हैं, एक दिखता बहुत प्यारा है और दूसरा बोलता बहुत प्यारा है। दूसरा वाला मैं हूं। आप समझ रहे हैं? तो ये जो ग्रुप रहता है ना, ये आपको बहुत मजा देता है आगे चल के। अभी नहीं, आगे चल के बहुत मजा देगा। क्योंकि आगे चल के पता है क्या होता है, मैं आपको जेन्युइनली बताऊं क्या डिस्कशन होता है, सच में बता रहा हूं। और हम सब बैक बेंचर वाले हैं, तो हमारे थॉट थोड़े से अलग है। तो पता है क्या डिस्कशन होता है? यार एक काम करते हैं, दुबई चलते हैं। यहां तक के तो ठीक था। दूसरा क्या बोलता है, भाई यार एक काम करते हैं ना, वहां के सबसे बेस्ट होटल के अंदर में रुकते हैं, पैसा लगेगा लग जाएगा। आप सोच रहे हो भाई जरूरत क्या है? दूसरा क्या बोल रहा है, नहीं यार वहां पे अपन जा रहे हैं तो अपने जैसे बहुत सारे लोग आ रहे होंगे, क्या पता अपन किससे मिलकर के कुछ नया अपॉर्चुनिटी क्रैक कर ले। तो आप समझ रहे हो वो आदमी बात क्या कर रहा है? वो ऐसा बंदा है जो सोच रहा है कि यार वहां पे अगर उस होटल के अंदर में जाएंगे तो कोई इस कैटेगरी का बंदा आएगा जो वहां पे अपने को मिलेगा और उससे पहचान बढ़ेगी। दूसरा आदमी, ऑनेस्टली मैं खुद ये सोच रहा हूँ, यार काय को जाना है, काय को पैसे खर्चा करना है। पर एक आदमी उसमें से सोच रहा है भाई अगर उस पूरे ट्रिप में से एक बंदा भी मिल गया ना जिसके साथ अपना बिजनेस डेवलपमेंट नेटवर्क जुड़ गया, मजा आ जाएगा। तीसरा पता है क्या सोच रहा है, जो करना है करो, मेरे को कोई लेन देन नहीं, मैं तो वहां जाके एडवेंचर करूंगा और देखूंगा कि ऐसा कुछ इंडिया में ला सकते क्या। बात समझ रहे हो? तो जब ये सर्कल या विनर सर्कल जैसी कोई चीज होती है ना, ये नेटवर्क और प्रोफेशनल नेटवर्क का बहुत बढ़िया जरिया है। शायद ही आपने मिस करना चाहिए। और कुछ नहीं तो प्यार ही मिल जाएगा दोस्तों का। थैंक यू फॉर क्लेरिफाइंग दोस्तों का। फिलहाल तो ठीक है, लेट्स गो अहेड। तो द वे यू सेड अबाउट द विनर्स सर्कल, वी आर ऑल्सो कंपाइलिंग एन एंथोलॉजी ऑन चार्टर्ड अकाउंटेंसी, जिसमें मल्टीपल सीए स्टूडेंट्स अक्रॉस द कंट्री विल बी शेयरिंग देयर राइट अप्स। सो अगर आप अभी सीए स्टूडेंट होते तो on what topic would you have thought of writing? Would that be your Honda City car experience or managing CA finals and your articleship or your love story or something else? मैनेजिंग योर लाइफ, नन ऑफ द अबाउ जो आपने कहा, बट मैनेजिंग द लाइफ, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक, बियॉन्ड अ डिग्री, बियॉन्ड अ थिंग। मैं इतने सारे बच्चों से मिलता हूँ, बहुत सारे बच्चे प्यार से बिजू भैया कहते हैं। इतने सारे बच्चों से मिलता हूँ ना, अलग अलग स्टोरी है यार सबकी। कोई घर से भागना चाहता है, किसी को अपनी जान ही लेनी है, किसी को बहुत कुछ करना है कर नहीं पा रहा है। मैं अगर शायद लिखूं ना, तो शायद एक बैलेंस कैसे बनाया जाता है ना दोनों के बीच में, कि हार के भी आप क्यों जीतने की राह पकड़ सकते हो। 10 बार हारने के बाद भी आप शायद कैसे वो एक सही रास्ता चुन सकते हो सकता है आपने यार बहुत सही डिसीजंस लिए, बट इट डज नॉट वेंट द वे यू वांटेड। शायद मैं उसके ऊपर कुछ लिखना चाहूंगा। बट हाँ, आई वुड डेफिनेटली वांट टू बी द पार्ट ऑफ दिस काइंड ऑफ बुक, जिसमें इतना कुछ लिखा हो, इतना कुछ समझदारी से चीजें मेंशन की गई हो। तो आपकी लाइफ में भी इतना कुछ हो चुका है। So if like your life had a tagline, then what would that tagline be? विजयी भव। आपके नाम से मिलता नहीं, जुलता। ये नाम से मिलता है या नहीं डजेंट मैटर।
वो इसलिए कि जब भी हम कोई चीज करता है, कोई व्यक्ति झुकता है, तब हम उसे कहते हैं विजयी भव, है ना। जब कोई व्यक्ति किसी को झुक के प्रणाम करता है, तो विजयी भव ये डिनोट करता है कि आप जब भी झुक रहे हैं, किसी चीज के लिए नीचे जा रहे हैं, कोई आपको ब्लेस करके ऊपर लेकर के आए, तो विजयी भव उसको डिनोट करता है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि ये डिग्री लेंगे तो ही आप लाइफ में सक्सेसफुल बनेंगे। आप जो कर रहे हैं बेहतर करें, और करो तो हद कर दो, वरना प्रोग्राम रद्द कर दो। इसलिए विजयी भव, कि सब सही होगा, टेंशन नहीं। हम्म। तो आपने इतना सब बताया कि आप इतना सब कर रहे हो, सो व्हाट इज नेक्स्ट फॉर यू, एनी अदर प्रोजेक्ट्स और गोल्स दैट यू आर वर्किंग ऑन राइट नाउ? फॉर मी, यस यस। थैंकफुली टू निर्मला दीदी, करंटली वर्किंग ऑन द न्यू एक्ट, बनाना चालू कर दिया है, बहुत सारा पढ़ भी लिया है। बट खैर, अगर आप इसके अलावा बात करेंगे कि यार इसके अलावा क्या करना है, तो व्हेन इट कम्स टू बिजनेस, इंश्योर करना चाह रहे हैं कि यार 2-3 नए प्रोजेक्ट्स में और एंटर करें। मतलब रिसेंटली हम बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स में भी हैं, तो ट्राई कर रहे हैं कि और थोड़ा सा एनहांस करें उसको। व्हेन इट कम्स टू पर्सनल लाइफ, कि मैं पर्सनली क्या करना चाहता हूँ, यार मैं जो नया मेरा बेबी हुआ है श्रीजय, उसका बचपन देखना चाहता हूँ, स्वास्तिक को बहुत सारी चीजें सिखाना चाहता हूँ, पल्लवी के साथ बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। व्हेन इट कम्स टू मी एज अ चाइल्ड, मैं बहुत रिसेंटली मेरा एक बहुत पुराना ड्रीम पूरा करने जा रहा हूँ, दैट इज मेरे पेरेंट्स को आउट ऑफ इंडिया ले जाने का। मेरे जो बुआ जी थे जिनके पास रह करके मैं सीए बना हूँ, मैं उनको और मेरी मम्मी को मैं आउट ऑफ इंडिया लेके जाना चाह रहा हूँ। और व्हेन इट कम्स टू मी एज अ टीचर, मैं ये इंश्योर करना चाह रहा हूँ कि जितनी बुक शॉर्ट हो सके, जितना इजी कंपाइलेशन हो सके, मैं वो करूँ। रिसेंटली हम लोगों ने एक चीज किया था, सीए फाइनल की बुक को बहुत ज्यादा कंसाइज करने की कोशिश की है। मेक श्योर करना चाह रहा हूँ कि ये और आसान हो जाए, और हाँ, बहुत सारी प्रैक्टिस, क्योंकि शायद चीजें उसी से होती है। Great share, sir. So, firstly, congratulations for new junior Vijay, sir, and congratulations for completing yet another dream of your parents. And also, congratulations for concising tax for us and also expanding our future careers. So, now let us, like, the chat box is now open. In case anybody has any questions to ask, you guys can put up in the chat box. वेल, मैं कुछ बोल सकता हूँ? Yes, sir. Okay. To everyone who is seeing the video of the inner circle और everywhere, any social media जहाँ पे भी आएगा, मैं आप सभी को एक बात कहना चाहता हूँ, एज अ फ्रेंड, एज अ बिग ब्रदर, बड़े ड्रीम्स देखो, बहुत बड़े ड्रीम्स देखो। कौन तुम्हारे बारे में क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है, डोंट वेस्ट योर टाइम देयर, इट वोंट लीड यू एनीवेयर। बहुत सारे लोग जो है ना, आप में से स्पेशली बच्चियां, बहुत ओवर थिंक करती हैं किसी के भी बारे में। यू डोंट नीड टू डू इट। तुम्हारे दिल में अगर कुछ लग रहा है ये करना है, कर दो, दिमाग मत लगाओ। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, बहुत सारे लड़के ये सोचते हैं क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा, कैसे होगा। करते जाओ, सब हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता लाइफ के अंदर में। ठीक है, एक बात बहुत अच्छे से है ना, जिसको तुम्हारे साथ रहना है ना, आप जितने भी यूथ है, बहुत अच्छी एक बात कह रहा हूं, जिसको तुम्हारे साथ रुकना है ना, वो रुक जाएगा, बहाना नहीं देगा। और जिसको तुम्हारे साथ नहीं रुकना, वो नहीं रुकेगा। आए तो वेलकम, नहीं आए तो भीड़ कम। जितने जल्दी इसको समझोगे उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यू मैटर्स, आपकी लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सपने बहुत इंपॉर्टेंट है। बी सेल्फिश, किसी के लिए दिमाग नहीं लगाना, वो क्या सोच रहा है, क्या नहीं सोच रहा है, क्या दिखेगा, क्या वो करेगा। तेरे को अगर लग रहा है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप में से किसी को लग रहा है यार मेरे को वीडियोस बना के डालना बहुत अच्छा लगता है, यार मेरे को किसी ये चीज का करना लगता है, तो वो 2 मिनट के लिए ना दिमाग में लिखा दो कि मैंने इसको ऐसा बनाया तो कैसा दिखेगा। छोड़ना मेरे भाई, नहीं देखना, नहीं देखना। तेरे को करने की इच्छा है, तू कर दे, काम खत्म। तू है ना ओपिनियंस के लिए वेट मत करते बैठ कि ऐसा करूंगा तो वो क्या करेगा, मैं ऐसा करूंगा तो वो क्या करेगा। तू करते रहे, जिस दिन किसी को एक क्लिक करेगा ना, उस दिन काम हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात? और दूसरा, सपने प्लीज छोटे मत देखना, ये लाइफ बहुत छोटी है। तुम ऑलरेडी शायद 18-19 साल वेस्ट कर चुके हो ये समझने में कि अकबर ने क्या किया, बिरबल ने क्या किया, फिर एक्स ने क्या किया, वाई ने क्या किया। आज कोई भी रेलेवेंट नहीं रखता।
और भाई साहब एक 5x5 रूल को याद रखो, जब भी आप कोई चीज करने जा रहे हो ना, पहले ये सोचो 5 साल बाद इसका क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका किसी से झगड़ा हो जाता है, राइट, या आप कोई चीज कर रहे हैं, क्या 5 साल बाद ये रेलेवेंट रहेगा क्या? अगर ये 5 साल बाद रेलेवेंट नहीं रहने वाला, तो आज 5 से ज्यादा मिनट उसके ऊपर इन्वेस्ट करना बेवकूफी है। What is more important is not to have a worthy watch in your hand. What is more important is that whether you are enjoying that all the moment you are spending and whatever the thing, किसी और के लिए तुम अपना मूड खराब करके बैठते हो, बेवकूफी है। एक ऐसे ऑफिस के लिए तुम अपना एक क्लासेस, एग्जाम और बाकी सब चीजों सोचते बैठते हो, वो ऑफिस ना तेरा नहीं है। अपना ऑफिस, पहली बात उसको बोलना बंद कर प्लीज। यही चक्कर में ना तू ही सबसे ज्यादा बेवकूफ बना है इस पूरे ऑफिस में, है ना? तो सभी आर्टिकल्स को मैं ये कहना चाहता हूं, बेवकूफ है क्या मेरे भाई? टेम्पररी चीजों के लिए परमानेंट दिल नहीं लगाते, बात समझ। वो टेम्पररी जगह है, वहां तो सीखने जा रहा है, वहां पे तेरी इज्जत एम्प्लॉय से ऊपर भी नहीं है। उसके लिए ना अपने फैमिली फंक्शंस, अपने पसंद वाली चीज, अपने एग्जाम, अपनी क्लासेस, ये सब मिस नहीं करते। जा, सीख, समझ, इज्जत दे, है ना? इज्जत उड़ा के मत आ वहां पे, बस फोकस करते रहे। और मैं आप सभी को एक ही चीज कहना चाहता हूं, आप फाइनल में हैं, इंटर में हैं, फाउंडेशन में हैं, कोई भी लेवल पे है, पास होने के लिए किसी क्लासेस के पास कोई जादुई छड़ी नहीं है। स्वतः मरा आणि स्वर्ग बघा, सॉल्व करो तो ही पास होंगे। वो पास का रिजल्ट आपका है, वो रैंक आपका है, और वो सारी सक्सेस आप डिजर्व करते हैं। समझ में आ रहा है? आपने एकत्वम लगा दिया तो लो जादू की छड़ी, हम तुम्हें पास कर देंगे, रैंक में ला देंगे। गलत है, बिल्कुल गलत है। आप लिखेंगे, सॉल्व करेंगे तो ही पास होंगे। 10 यूट्यूब पे वीडियो देख लो, 50 रिवीजन लेक्चर देख लो, 1000 अलग बुक पढ़ लो, नहीं। आईसीएआई को जाइए, वो लिख दो, करेक्ट। एट द एंड आंसर 3 ही प्रकार के होते हैं, राइट, रॉन्ग और आईसीएआई। क्या बोला? आंसर कितने प्रकार के होते हैं? 3। राइट रेलेवेंट नहीं है, रॉन्ग कतई रेलेवेंट नहीं है। आईसीएआई को जो चाहिए वो लिख दो तो पास हो जाओगे, शायद रैंक में भी आ जाओ, है ना? Yes. बस खत्म हो जाता है। Thank you, sir, for such a great, insightful, motivational, and guiding session. Your presence truly means a lot. So, now before we officially end this session, I would like to inform Vijay sir that once the anthology education is published, the Winners Circle will be providing you with a small token of gratitude for your humble presence and for all the support you have shown to us. And thanks a lot, sir, for being here. And it truly means a lot to have you with us. And we also hope you had a great time with us. Thank you so much for inviting me here. Thank you so much. The word education given by me in some of the video. I would definitely lend my this love word education to you, obviously, because I know many of the winners in future need winner circles. So yeah, thank you so much, everyone, for Thank you, listening sir. me very patiently. Thanks a lot, sir, Thank for you, sir. coming here. Thank you Thank so you. much, sir. Bye bye. Thank you so Bye. much. It was a pleasure hearing you.